Hello students, welcome in my channel. Today we are going to discuss a very important topic, that is a coordinate, co-dative or co-ionic bond. So what is the co-dative, coordinate or co-ionic bond that we are going to discuss in today's lecture. So in the yesterday's lecture we are discussed about the ionic and covalent bond. So what is the co-dative bond? So actually co-dative means this is the combinations of the covalent and ionic bond. That's why it is known as the co-ionic bond. Co means covalent, ionic means ionic bond. So co-ionic bond it is also known as. So coordinate, co-dative and co-ionic, all the three words are same only. Understand? Now what is this? The theory behind that. What is the co-dative? Actually the bond we are going to understand. So when, listen carefully, when the bond formed between the two atoms, by sharing of one lone pair of electrons, by transfer of one atom, by transfer of electrons by one atom, but share between the both the atoms. So when such a type of bond is formed, it is known as the co-dative bond. Understand what I want to say? Actually see carefully, with the help of examples we are going to understand what is a co-dative bond. Actually suppose two atoms are there, listen carefully, two atoms are there, and suppose one of the atom must have the lone pair of electrons. Obviously conditions will be one of the atom must have the lone pair of electrons. Suppose these atoms have the lone pair of electrons, so there is the transfer of lone pair of electrons, correct? So there is the transfer of lone pair of electrons and there is the formation of the bond. Means what? So this electrons is transferred from one of the atom, but this electrons is going to share between the two atoms now. Understand? So there is a formation of bond. So such a type of bond is actually known as the coordinate bond. Clear? So very easy concept is there. So transfer and sharing. So I want to say that there is the transfer and sharing of actually the electrons takes place in the co-dative bond. So see here, so there is the transfer and sharing of electrons takes place. So transfer of electrons means what, students? Transfer of electrons means ionic bond, you know that, and sharing of electrons means what? Covalent bond. So obviously it is the combination of ionic and covalent bond. Understand now? So we are going to understand actually how it takes place. So let us see one example and then you come to know that actually the theory behind this. So before going to see the theory, actually with the help of examples, we must know what is the conditions of bond formation. So whenever this bond is formed between the two atoms, one of the atom must have lone pair of electrons. This is the best condition. So if one of the atoms have lone pair of electrons and another atoms where it is going to transfer is less or least of one lone pair of electrons. Understand? So this is a condition actually bond formation, and once you understand the conditions then it is very easy. तो देखिए चलिए अभी हम देखने वाले हैं बच्चों, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड्स, और उसको ही कोआयोनिक बॉन्ड कहते हैं. तो एक्चुअली कंसेप्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए आपके. तो कोआयोनिक बॉन्ड क्या होता है या कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड क्या होता है ये पहले समझ. दो एटम हो गए और दो एटम्स के बीच में बॉन्ड जो बनने वाला है, तो वो बॉन्ड कैसे बनने वाला है? एक एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने वाला है, एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाले हैं, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर वो करने वाला है. लेकिन वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं बच्चों? दोनों के बीच में फिर से शेयर भी होने वाले हैं. तो ये मज़े की बात इसमें है कि इसमें ट्रांसफ़र भी हो रहा है और शेयरिंग भी हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया है को-आयोनिक बॉन्ड. आ रहा है समझ में अभी? तो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक एटम ट्रांसफ़र भी कर रहा है और दोनों के बीच में शेयरिंग भी हो रहा है. ये तो इम्पॉर्टेंट है. और फिर इसके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि एक एटम के पास मिनिमम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए, तब जाके आपका ये बॉन्ड बनने वाला है. आ रहा है समझ में?
तब तक नहीं बनेगा। अगर वो एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो ये बॉन्ड बिल्कुल नहीं बन सकता, सीधी सी बात है। तो आपको मिनिमम कंडीशंस क्या है, दोनों में से एक एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होना चाहिए, तब जाके वो बात बनने वाली है। तो बच्चों यही है एक्चुअली कोडेटिव बॉन्ड का कंसेप्ट। तो हम देखने वाले हैं कि इसमें एक्चुअली ट्रांसफ़र और शेयरिंग होती है, इसकी वजह से उसको ट्रांसफ़र में क्या होता है, ट्रांसफ़र यानी आयोनिक बॉन्ड होता है और शेयरिंग मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये हमने कल के लेक्चर में देखा है ऑलरेडी। ओके, तो इसमें आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसको कहा गया है को आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट एंड आयोनिक का कॉम्बिनेशन, इसलिए को आयोनिक बॉन्ड भी उसको कहते हैं। अंडरस्टैंड नाउ अप टू हियर। आगे जाएंगे, अब जाएंगे एग्जाम्पल के पास। तो एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर हो जाएगा, और उससे पहले आपको मैंने कंडीशंस बता दी है। क्या बताइए कंडीशंस, वन ऑफ द एटम मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ये जो बॉन्ड दिखाते हैं, दिखाने का सिंबल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंबल्स। तो सिंबल्स उसका ऐसे होता है, ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो सिंबॉलिकली ए बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द सिंबल्स एक्चुअली फॉर द बॉन्ड, शोइंग सिंबल्स इज देयर फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब है ए और बी के बीच में बॉन्ड है, और ए जो बॉन्ड है ए कोडेटिव बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस सिंबल से भी एक पता चलता है कि ए जो एटम्स है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। इसका मीनिंग ये है, ये डोनर है और ए एक्सेप्टर है। ये भी आपको इससे पता चलेगा, एक्सेप्टर है। ओके, सो डोनर और एक्सेप्टर का भी हमें इससे पता चलता है, ये बॉन्ड के सिंबल से। आ रहा है समझ में। अगर इधर ऐसे होता, बाय चांस अगर ऐसे होता, तो आपको अगर ऐसे दिखाया जाता तो आपको इसको मतलब पता होना चाहिए कि ये फिर डोनर हो जाएगा और ये फिर एक्सेप्टर हो जाएगा, क्योंकि इसका सिंबल इधर आ रहा है, तो ये इसके पास लोन पेयर हो गए, ऐसे हम समझ सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो ये आपको समझ में आ गए तो आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है अभी इस बॉन्ड के बारे में, ठीक है। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स एंड देन you can see actually how this bond is going to form in a different example. So one examples I am going to tell you, that is the formation of hydronium ions. तो बेस्ट एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस का सिंबल्स लिखली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं इसको। तो हाइड्रोनियम आयंस ये कैसे बनाते हैं बॉन्ड्स, ये देखेंगे अभी। सो हाउ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस टेक्स प्लेस नाउ इन द हाइड्रोनियम। एक्चुअली व्हाट इज देयर स्टूडेंट्स, देयर इज द H2O वाटर मॉलिक्यूल एंड देयर इज वन H प्लस आयंस इज देयर। सो ये H प्लस आयंस किधर से मिलता है, तो एसिड का भी डिसोसिएशन होने के बाद में H प्लस आयंस आपको मिल सकता है। जैसे कि HCl है, HCl का डिसोसिएशन हो गया H प्लस और Cl माइनस, आपका H प्लस उधर से भी आ सकता है इधर, ठीक है। तो H प्लस आयंस है सोल्यूशन में, और वाटर है। तो वाटर का हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वाटर आई कैन राइट इन दिस वे स्ट्रक्चरली। और वाटर के पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है कि दो लोन पेयर्स होते हैं, बराबर है। इफ यू नो ऑक्टेट रूल्स और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 6 अगर उसके पास है तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि इसके पास कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसमें आगे जाएंगे और इसमें पता करेंगे कि ये बॉन्ड एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए, तो ये हाइड्रोजन H प्लस आयंस आपका इधर है, तो इसमें क्या पता चलेगा बच्चों, तो ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू एक्टिव नाउ इन द प्रोसेस। तो एक लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसके साथ में बनाएगा बॉन्ड। आ रहा है समझ में। तो इसके साथ में बनाएगा बॉन्ड। ये तो आप ऑलरेडी H प्लस है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है,
जनरली हाइड्रोजन अगर लिखते हैं तो उसके पास एक रहता है, लेकिन हाइड्रोजन H प्लस है बोले तो क्या उसने वो भी इलेक्ट्रॉन्स उसका नहीं है। आ रहा है क्या समझ में? अभी हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो हाइड्रोजन को डुप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर्स है, ये ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करके इसके साथ में बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खाली बैठे हैं। अंडरस्टैंड वाई दे आर गोइंग टू टेक पार्ट इन टू द केमिकल रिएक्शंस, ये भी बड़ा सवाल है आपके सामने अभी। तो इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन रीच है, ये ज़्यादा रीच है, बराबर है। तो ये अगर ज़्यादा रीच होगा तो ये क्या करेगा, इसको हेल्प कर सकता है वो, बराबर है। तो इसको हेल्प कर सकता है तो उसके साथ में वो बॉन्ड भी बना सकता है। तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा ये देखेंगे हम अभी। तो ऑक्सीजन आपका ऑलरेडी है, उसके साथ में ये जो हाइड्रोजन है ये ऑलरेडी है, और ये भी हाइड्रोजन उसके साथ में ऑलरेडी है। लेकिन अभी जो कि ये लोन पेयर्स उसके साथ में बॉन्ड बना रहे और उसके साथ में बना रहा है ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड। अभी ये बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से देखिए, और उसके साथ में अभी फिर भी लोन पेयर एक बाकी है उसके पास, करेक्ट। सो 1 लोन पेयर इज स्टिल रिमेनिंग देयर। So this lone pair is actually bonded with hydrogen. Now interesting thing is what? Lone pair is transferred from the oxygen to H plus. बराबर है। तो ट्रांसफर भी हो रहा है, लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच में हो गया ना, बॉन्ड तो दोनों के बीच में बन रहा है। तो एक्चुअली वो 2 एटम्स जो है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो ये दोनों एटम के बीच में आ गए हैं। अंडरस्टैंड, इसलिए वो ट्रांसफर भी किया और शेयरिंग भी दोनों के बीच में हो रहा है। और जो कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसका एरो तो सिंबल आपको मैंने पहले बताया कि ऐसे दिखाते। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि अभी ये बॉन्ड बन गया है आपका। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, तो ये ऑक्सीजन ने अगर 2 लोन पेयर्स दिया तो अभी पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, ओबियसली ऑक्सीजन पे आएगा। अंडरस्टैंड, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स इसमें काम में लग गए। तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये हमें एक स्पीसीज बना देता है इधर, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया आपका इधर। और आगे अगर जाएंगे तो ये क्या होता है, हम यही आगे लिखते हैं कि ये है आपका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और फिर ये जो है ये बॉन्डेड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये लोन पेयर, और ये जो चार्ज आता है ये हम बाहर निकल के इधर लिखते हैं। एक्चुअली ये जो चार्ज है बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, हम लिखते वक्त क्या लिखते हैं, H3O+, बराबर है कि नहीं। तो ये जो चार्ज है तो बहुत से बच्चे हाइड्रोजन का चार्ज मानते हैं उसको, तो ये भी गलत है। ये एक्चुअली चार्ज किसका है, तो ये ऑक्सीजन का चार्ज है, ये भी याद रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर्स शिफ्ट किए हैं हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये भी चीज़ आपको इधर याद भी रखनी है। जो भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होता है वो कौन से एटम का है, अभी ये ऑक्सीजन एटम का। ये चीज़ आपको इधर ध्यान में रखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ये बॉन्ड्स बना है, ऐसे ये कंपाउंड्स बनते हैं। ये हो गया आपका हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन। ये बोले तो क्या है बच्चों, यही है आपका H3O+। अंडरस्टैंड, यही है आपका H3O+, ऐसे आप रिप्रेजेंट करते। तो हाउ द बॉन्ड एक्चुअली फॉर्म, बाय द वाटर molecules having the oxygen which is having the lone pairs of electron. This lone pair of electrons is going to react with the H+ ions. H+ ions किधर से लिया, HCl सॉल्यूशन से बना के लिया, ठीक है। तो H+ आयंस के साथ में जब बॉन्ड बनेगा तो ये लोन पेयर के काम आने वाले हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास है, इसलिए उधर बॉन्ड बनने वाला है। जो फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि दोनों के बीच में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए एटम के बीच, तो इसके पास लोन पेयर है इसलिए बॉन्ड बन रहा है। और फिर ये ट्रांसफर करने के बाद में फिर से दोनों के बीच में बॉन्ड भी बन रहा है। सो ट्रांसफर एंड शेयरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रांसफर और शेयरिंग हो रहा है तो क्या बॉन्ड बन रहा है इधर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ट्रांसफर और शेयरिंग हो रहा है, इसकी वजह से याद रखना है, ट्रांसफर और शेयरिंग की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोडेटिव बन सकता है या को आयोनिक बॉन्ड भी बन सकता है इसमें, ठीक है। तो वो तीनों के नाम एक ही है एक्चुअली, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स में आप आगे देख सकते हैं कि NH4+ भी लिख सकते हैं आप। NH4+ मीन्स अमोनियम आयंस में भी ऐसे ही बनता है। अमोनियम आयंस में क्या होगा बच्चों, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। अमोनिया होता है NH3 और OH+ आयंस के साथ में रिएक्ट करेगा। अभी नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा, तो आपको बना देगा NH3 तो है नाइट्रोजन के पास, और फिर एक बनाएगा हाइड्रोजन के पास। अभी जो इसने लोन पेयर जो दे दिए है तो अभी ये तो पॉजिटिव बन जाएगा,
बराबर है। तो ये पॉजिटिव बन गया है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है तो NH4 प्लस बनेगा, लेकिन प्लस चार्ज किसका होगा, वो प्लस चार्ज एक्चुअली नाइट्रोजन का होगा। अंडरस्टैंड। तो यही है चीज़ें एक्चुअली टू अंडरस्टैंड अबाउट द कोडेटिव बॉन्ड, कोडेटिव या कोऑर्डिनेट, या आप उसको कोआयनिक भी बॉन्ड कह सकते हैं। So this is all about the today's lecture. I hope you understand the topic, that is a coordinate bond. Thank you all of you. Have a nice day.